Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 2, subject code BP503T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So dear learners, today we are going to discuss the pharmacology of or you can say pharmacotherapy of gout, ठीक है, and we can discuss the anti-gout agents, ठीक है. These are the learning objectives. At the end of this lecture, you will be able to define the gout, what is the etiological factor and what is the pathophysiology of gout. You can explore the drugs which are used in acute as well as the chronic gout disease. ठीक, you will be able to analyze the selection criteria of different anti-gout drugs and what are the agents which are used for the prophylaxis of the gout. Now, let's start with the introduction of gout. So, gout is a chronic heterogeneous disorder. ठीक है, so what is the meaning of heterogeneous? It means it has a different type of etiologic or causes. ठीक है ना, generally it is involve the irregular urate metabolism. ठीक है, यानी यूरिक एसिड का irregular metabolism होने की वजह से ये डिजीज ज्यादा देखने को मिलती है. ठीक है, now what happens in the gout? The uric acid, especially the monosodium salt of uric acid, deposited in the joint and the soft tissues, especially in the joint and the tissues of the you can say hand and finger. ठीक है ना, वहाँ पर ये ज़्यादा डिपॉजिट होता है and that may lead to the inflammation and the degeneration of the nearby tissues or the bones. ठीक है ना, most common form of inflammatory disorder है and generally it is observed after 40 plus of the age. ठीक है, अगर हम बात करें तो इसकी एपिडेमियोलॉजी में मेल आर मच मोर prone to the gout compared to the females. The word gout is derived from the Latin word known as gutta. ठीक है, and earlier it was believed that an acute attack of the disease was result of poison dropping into joints. ठीक है, some in the earlier days what people think that some poison was dropped into your joint and due to that the inflammation and degeneration was seen or the gout was seen. ठीक है, now gout is very commonly known as disease of kings. ठीक है, and what is the reason? Because generally राजा महाराजा लोग जो हैं उनकी जो डाइट होती है that is much more rich compared to the poor people. ठीक है ना, now they have a high concentration of protein and protein is responsible for the increased level of uric acid. हम इसको next slide में elaborate करेंगे. ठीक है, and if you can check, these are the famous personality who are suffering from or who suffered from the gout, better to say: Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Sir Isaac Newton, Charles Darwin and King Henry VIII. King Henry VIII. ठीक है, तो ये these are the person and famous personalities who suffered with the gout. ठीक है, what are the predisposing factors? तो especially protein rich diet is the first cause of the gout, especially meat, kidney, liver, seafood, anchovies, oatmeal, vegetables such as peas, beans, lentils, mushroom, cauliflower, spinach and sometimes sweet bread are also responsible for this. High level or high consumption of caffeine is also responsible for this. ठीक है, especially some drugs such as loop diuretics, NSAIDs, corticosteroids, niacin, cenemet, cyclosporin, salicylates, ethambutol and pyrazinamide also induces the pathology of gout. Trauma, infection sometime and the comorbidities such as diabetes mellitus, hypertension, vascular disorders, renal disorders, diseases, thyroid disease, sarcoidosis may also the patient may observe the gout. ठीक है, तो the patient who are suffering from these diseases can have a tendency to develop gout in them. ठीक है ना, group of conditions which may be characterized by the elevation of serum uric acid level is known as what? hyperuricemia. ठीक है ना, यानी जब बहुत यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया तो उसकी वजह से हमने क्या टर्म यूज किया? hyperuricemia. नाउ रिकट इसमें जो देखने को मिलता है जनरली बर्निंग फीलिंग आती है पेन के साथ. ठीक है, एंड दोस फीलिंग आर नोन एज व्हाट? फ्लेयर्स. ठीक है ना, तो रिकरेंट अटैक होता है फ्लेयर का अलॉन्ग विद द इन्फ्लामेशन एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स. ठीक है, ये क्या होते हैं आपके साइनोवियल फ्लूइड में या फिर आपके बॉडी में जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, जो ये आप देखो टार्सल मेटाटार्सल्स है ना, वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं. जनरली वंस दीज crystals deposited and if untreated, left untreated, they may
डिस्ट्रक्ट द बोन एज वेल एज द जॉइंट, ठीक है, एंड एग्रीगेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल विच इज ऑल्सो नोन एज, अगर हम बहुत सारे यूरिक एसिड इकट्ठा कर दें, एक जगह क्लम्प कर दें, तो उसके लिए एक बहुत कॉमन वर्ड यूज होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, टॉफी, ठीक है। तो टॉफी इज व्हाट, द एग्रीगेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल एंड अराउंड द जॉइंट एंड द सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है। टॉफी in bone lead to the bone erosion some cases, and it may also lead to the deposition of those crystals into the kidney and lead to the renal stone, ठीक है। now this is the you can say hyperuricemia chart, ठीक है। when we can say the person was suffering from hyperuricemia या excessive level of uric acid in the blood, ठीक है, when it exceeds 6.8 milligram पर 100 ml ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो अगर इससे ऊपर गया तो हम पेशेंट को क्या कह देते हैं, इट इज हाइपर यूरेसिक, ठीक है ना। अगर इससे नीचे है तो हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। नाउ क्लिनिकली जो डॉक्टर्स हैं वो इस लेवल को और थोड़ा सा एनहांस कर देते हैं, वो कहते हैं अगर 8 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा अगर यूरिक एसिड है आपके ब्लड में, तो इट मीन्स कि अब तब आप हाइपरयूरेसिमिया है, ठीक है ना। नाउ इसको थोड़ा एलोबरेट कर लेते हैं। जनरली हम अगर ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं तो इसकी वजह से वो टूटता है और वो टूटकर बनाता है क्या, जेंथिन, ठीक है। और जेंथिन जो है फिर टूटता है और जेंथिन टूट के बनाता है यूरिक एसिड, ठीक है। नाउ एक्सेसिव यूरिक एसिड में डिपॉजिट इनटू द बोन्स और जॉइंट्स और यू कैन से मसल्स, ठीक है, एंड दिस में लीड टू द disease which is known as what, hyperuricemia. It is the initial stage, but if untreated it may lead to the what, chronic condition which is known as what, gout, ठीक है। अब यहां पर किडनी स्टोन होने के चांसेस भी बढ़ गए। अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है तो किडनी स्टोन होने के चांसेस भी बढ़ गए, और कभी कभी दे में ऑल्सो लीड टू द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक है। नाउ what are the stages of the gout? So it is divided into 4 categories. The first one is asymptomatic hyperuricemia. यहां पर कोई सिम्टम नहीं होगा, नाम जैसा बोल रहा है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सिम्टम इज नोन एज व्हाट, asymptomatic, ठीक है। तो सिम्टम वाज नॉट सीन इन द पेशेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, asymptomatic hyperuricemia. Acute gout is the condition where the patient having a less symptoms, ठीक है, and this is the reason why it is known as acute gout. It is the initial stage, ठीक है। ये आपको कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक की ये डिजीज होती है, ठीक है। फिर जो तीसरा लेवल है वो है इंटरक्रिटिकल. नाउ दिस इज द ब्रिज इन बिटवीन ऑफ व्हाट, एक्यूट एंड क्रोनिक गाउट. ठीक है, यानी कि ये ब्रिज है, ये कंडीशन वो है जहां पर एक्यूट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आपके क्रोनिक गाउट में. ठीक है, एंड इट विल टेक अराउंड फ्रॉम वीक्स टू मंथ. ठीक है ना, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए हमने एक थर्ड स्टेज बना रखी है, दैट इज नोन एज व्हाट, इंटरक्रिटिकल गाउट, वेयर द एक्यूट कन्वर्ट्स इनटू द क्रोनिक. एंड द लास्ट वन विच इज नोन एज व्हाट, chronic tophaceous gout. ठीक है, दिस इज अ condition when patient having a high uric acid level for months. ठीक है ना, ये कंटिन्यूसली उसके बॉडी में लगा रहेगा. ठीक है, तो इसको हमने क्या कह दिया, क्रोनिक कंडीशन. नाउ एक बार वन बाय वन वी कैन डिस्कस अबाउट द एक्यूट एंड क्रोनिक गाउट. एक्यूट गाउट इज अ पेनफुल कंडीशन, इसको हम समझते हैं, विच इज टिपिकली अफेक्ट्स द न्यू वन और फ्यू जॉइंट्स. ठीक है, यानी एक्यूट गाउट का पहला मैनिफेस्टेशन क्या, इट हैज अफेक्टिंग सम जॉइंट्स. ठीक है, 1 2 3, नॉट मोर देन 2 3. ओके, ठीक है. द बिग टो, नी एंड द एंकल जॉइंट आर द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट. ठीक है, व्हाट आर द सिम्टम्स, तो थ्रॉबिंग होगा उस पर्टिकुलर एरिया में, आपको लगेगा वहां पर कोई पिंच हो रहा है बार बार. ठीक है, क्रशिंग या फिर एक्सुरेटिंग पेन देखने को मिलेगा. नाउ joint appears warm at the site of inflammation. generally what happens, vasodilation, ज्यादा ब्लड वहां जाएगा, तो ज्यादा ब्लड जाने से वहां पर आपको वार्मनेस फील होगा, रेडनेस देखने को मिलेगा. ठीक है, ये एक सिम्टम हो गया. फीवर भी कभी कभी देखने को मिलता है, एंड दिस अटैक में गो अवे विद इन फ्यू डेज. ठीक है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड इट इज अ डिजीज फ्रॉम डेज टू सम वीक्स. ठीक है ना, तो ये कुछ दिनों में चला जाएगा. ठीक है, बट अगर ये दोबारा से इस तरह से रिकरेंट हुआ, ठीक है, ये बार बार आपको होता रहा, तो हम इसको फिर क्रोनिक गाउट की स्टेज में ला सकते हैं. ठीक है, नाउ आफ्टर फर्स्ट गाउटी अटैक हाफ ऑफ द पीपल हैव नो सिम्टम्स. ठीक है, यानी एक बार अटैक हुआ, वो सिम्टम्स इतने जर्नल होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा यू आर सफरिंग फ्रॉम गाउट और सम थिंग एल्स. ठीक है ना, बट फिर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस अटैक को, रिकरेंट अटैक को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं.
क्रोनिक गाउट की अगर हम बात कर लें तो क्रोनिक गाउट जो है इसमें जनरली जॉइंट डैमेज होना शुरू हो जाता है, बिकॉज इट इज अ प्रोग्रेशन ऑफ द एक्यूट गाउट इनटू मच मोर सीवियर कंडीशन विच इज नोन एज व्हाट क्रोनिक गाउट. जॉइंट डैमेज यानी आपके जॉइंट्स जो है डैमेज होने लगेंगे, लॉस ऑफ मोशन होने लगेगा, मूवमेंट नहीं होगा जॉइंट्स का. जॉइंट पेन इज अ वेरी कॉमन सिम्टम एंड समटाइम द टॉफी बिलो द स्क्रीन, ठीक है ना. तो टॉफी बिलो द स्किन जो है वो वहां पर आपको थोड़ा सा इन्फ्लामेशन या फिर थोड़ा सा हार्डनेस देखने को मिलने लगेगा, ठीक है. जनरली क्रोनिक गाउट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैसिव डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल इन आर्टिकुलर कार्टिलेज, सबकॉन्ड्रल बोन, साइनोबियल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, टेंडन सीड्स एंड द पेरीआर्टिकुलर टिश्यू, ठीक है. नाउ टॉफी फॉर्मेशन कैन ऑल्सो अकर ओवर eyelids, nasal cartilage, cornea, tongue, vocal cords and penis, ठीक है. तो these are also affected part by the excessive deposition of the uric acid level. Now investigations, very commonly used investigation, how we can diagnose that you are suffering from the gout. So generally we can go with the x-rays, ठीक है. We can use the serum as uric acid level, we can check the synovial fluid analysis, ठीक है. We can check blood urea nitrogen or serum creatinine. Synovial biopsy is also used in some advanced patient, ठीक है. And uric acid level urine में check किया जाएगा, तो it will be a very good option for diagnosis, ठीक है. Now the synovial fluid analysis is a gold standard test, ठीक है. It is very commonly used. Crystals intracellular during cell attack जो है it is very commonly observed. क्रिस्टल्स का जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज लाइक निडल और लाइक कोन, ठीक है ना. तो रॉड शेप में या कोन शेप में होंगे, ठीक. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बायरेफ्रेंसेंस. इसका मतलब होता है इट इज अ प्रॉपर्टी विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट, ठीक है ना. ये एक ऑप्टिकल फिजिक्स का वो है पॉइंट है. नाउ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट that either you are suffering from acute gout or intercritical gout or asymptomatic gout. So we can go with the मतलब different tests such as you can say gold standard test is there or the synovial fluid analysis or biopsy is there, ठीक है. These are the problem which are generally associated with the gout patients, ठीक है. If it is untreated, it may lead to the chondrocalcinosis, psoriatic arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, septic arthritis, and sometimes it may also lead to the cellulitis, ठीक है. Now what are the drugs which we can use for the treatment of gout? So generally NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory is the first choice of drug. कॉल्चिसिन भी यूज किया जाता है, ऑटोमनल कॉल्चिसिनम ऑटोमनल से निकलता है ये, ठीक है. यूरोकोसोरिक एजेंट विच कैन एनहांस द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम द यूरिन, एंड समटाइम xanthine oxidase inhibitor is also used. This is a drug which comes in the category of xanthine oxidase inhibitors, ठीक है. Okay, now drug name is what? Allopurinol or Fabuxate, ठीक है. तो one by one we can discuss these drugs, ठीक है. This is a flow chart which is indicating how we can use different drugs to treat or to block the uric acid formation, ठीक है. So मैंने बता दिया, sometime you have some environmental issues, some gouty risk factors, some hyperuricemia related factors और some decreased renal clearance factor, ठीक है. तो अगर हम देखें तो ज़्यादा प्रोटीन का कंजप्शन आपको यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाएगा बाय द इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन, ठीक है. डीएनए आरएनए ज्यादा टूटेगा जिसकी वजह से आपको जैंथिन बनने लग जाएगा. गाउटी में मेल आर वेरी प्रोन टू द गाउट, एज, ओबिसिटी इज ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है. द पैसिफिक आइलैंडर्स आर मच मोर प्रोन टू द दिस डिजीज. Polymorphism, especially the genetic polymorphism, is also some etiologic issue in along with this disease, ठीक है. And kidney patients are also prone to the what you can say uric acid hyperuricemia, ठीक है. Now अगर हम बात कर लें तो कुछ हम ड्रग ऐसे यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो रीनल क्लियरेंस है वो क्या हुआ, कम हुआ. सच एज हमने यूज किया हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, एस्प्रिन, फ्रक्टोज, जेनेटिक फैक्टर्स एंड किडनी डिजीज, और इसकी वजह से यूरिक एसिड, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है तो ये हमारे बॉडी से एलिमिनेट आउट नहीं हो पाता है जल्दी, ठीक है. इसको एलिमिनेट करने के लिए इसको इसके लाइटर साइड में ब्रेक डाउन करना पड़ता है. वंस प्यूरिन वॉज डिग्रेडेड बाय xanthine oxidase, it may form the uric acid and excessive uric deposition is hyperuricemia, ठीक है. 30% यूरिक एसिड जो है वो फीकस के रास्ते निकल जाता है, स्टूल के रास्ते निकल जाता है, वेयर एज 70% जो है वो आपके रीनल रूट से निकलता है, यानी यूरिन के रास्ते वो बाहर निकलता है. नाउ
what is the role of NSAIDs? So they generally does not treat the gout. ठीक है, what they can do, they can relieve you from a pain and inflammation. ठीक है, they inhibit the urate crystal phagocytosis by the macrophages, especially by decreasing the migration of granulocytes. ठीक है, into the inflammatory. अब क्या होता है इसमें कि मैक्रोफेजेस जो हैं वो साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे जाते हैं और यूरिक एसिड क्रिस्टल को क्या कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं. ठीक है, और एनगल्फ करने के बाद फिर उनको छोटे छोटे फॉर्म्स में ब्रेक करके वो रिलीज करते हैं, जिनकी वजह से साइटोकाइंस का लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में. ठीक है ना. इंडोमिथासिन, naproxen and ketorolac are the drugs which are very commonly used in the gout or associated issues. Now the second choice of drug, it is a very commonly used in the previous time. ठीक है, colchicine obtained from Colchicum autumnal. ठीक है, and it possesses the anti-inflammatory effect, but इसका जो mode of action है that is different from other NSAIDs. What it can do, it can bind with the इंट्रासेलुलर प्रोटीन ट्यूबुलिन. देयर इज अ प्रोटीन, माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन. ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बाइंड करेगा एंड वंस इट गेट बाइंड, ठीक है ना, इट प्रिवेंट्स द पॉलीमराइजेशन ऑफ दोस ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, यानी कि ज्यादा ट्यूबुलिन प्रोटीन बनने से ये क्या करेगा, रोकेगा. ठीक है ना. इट इनहिबिट्स ऑल्सो इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्राइंस. इट मीन्स कि ये ल्यूकोट्राइन को बनने से भी रोकेगा, साथ में उसके रिलीज को भी इनहिबिट कर देगा. Uricosuric drugs are those drugs which are used for elimination of excessive uric acid from the urine. ठीक है ना, यूरिन के रास्ते इसको बाहर निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं. जनरली द ड्रग्स आर प्रोबेंसिड एंड सल्फिनपैराजोन. ठीक है, ये बहुत कॉमनली यूज होने वाले ड्रग है. व्हाट आर द दीज ड्रग्स? ठीक है, तो दीज आर द वीक ऑर्गेनिक एसिड. ठीक है, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये. सल्फिनपैराजोन का जो मेटाबोलाइट है विच इज नोन एज फिनाइल ब्यूटाजोन, ठीक है, वो अपना काम देता है. ठीक है, इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड. ये मैंने पहले बता दिया आपको. जनरली ये रीनल क्लियरेंस को बढ़ा देगा यूरिक एसिड के, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो सल्फापैराजोन क्या है, इट इज अ मेटाबोलाइट ऑफ फिनाइल ब्यूटाजोन. फिनाइल ब्यूटाजोन इज वेरी कॉमनली यूज्ड एनएसएड. ठीक है, और उसको टूटने के बाद जो हमारा मेटाबोलाइट है वो यूज किया जाता है एज ए यूरिकोसुरिक एजेंट. ठीक है, नाउ कम टू द जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर. ठीक है, ये जो ड्रग है, this drug is a first choice of drug in the patients who are suffering from gout from weeks to months. ठीक है ना. ये काम कैसे करता है? जनरली दे इनहिबिट द एंजाइम नोन एज जैंथिन ऑक्सीडेज. अब जैंथिन ऑक्सीडेज का काम क्या वो समझ लेते हैं. जनरली आप जब ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने की वजह से आपकी बॉडी में जब प्रोटीन का लेवल एक सेट अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, द एक्सेसिव प्रोटीन विल ब्रेक डाउन इनटू द प्यूरिन एंड pyrimidine. ठीक है ना. नाउ व्हाट हैपन विद द प्यूरिन पाथवे, प्यूरिन कैटाबॉलिज्म विल लीड टू द सिंथेसिस ऑफ हाइपोजेंथिन. ठीक है, हाइपोजेंथिन बनेगा. ये जो हाइपोजेंथिन है, इट विल कन्वर्ट इनटू जैंथिन बाय द एंजाइम नोन एज जैंथिन ऑक्सीडेज. ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइपोजेंथिन का, किसमें, जैंथिन में, by the help of enzyme xanthin oxidase, and this xanthin will convert into the uric acid by the same enzyme xanthin oxidase. Yani once you can administered allopurinol, it may inhibit the pathway at two different level. The first one is the conversion of hypoxanthine into xanthin, and the second one is conversion of xanthin into the uric acid. यूरिक एसिड नॉर्मल पाथवे में अगर हम देखें तो कन्वर्ट होता है मच मोर सॉल्युबल पार्ट, बिकॉज यूरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी कम है, तो वो कन्वर्ट होता है एलेंटोइन में, जो कि यूरिन के रास्ते निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, फॉर दैट व्हाट वी कैन यूज द ड्रग नोन एज रेस्ब्यूरिकेज. ठीक है, तो रेस्ब्यूरिकेज क्या है, इट इज अ ड्रग विच एनहांस द कन्वर्जन ऑफ यूरिक एसिड इनटू allantoin, which is much more soluble compared to the uric acid in the water. ठीक है ना. Now treatment goals देख लेते हैं. तो रैपिडली हम जो टारगेट है, सबसे पहले तो हमको जो जलन है या उस पर्टिकुलर एरिया में जो पेन है उसको कम करना है, एक्यूट फ्लेयर्स को कम करना है. इट ऑल्सो यूज एज अ प्रोफाइलेक्टिक एजेंट फॉर द फ्यूचर फ्लेयर्स. ठीक है, रिड्यूसेस द चांस ऑफ क्रिस्टल इंड्यूस्ड इन्फ्लामेशन. इट में prevent the disease progression, lower the serum urate level, and correct the metabolic cause of this hyperuricemia. ठीक है. Now acute gout में अगर हम देख लें तो हमारा ये फार्माकोथेरेपी चार्ट है जो कि हम यूज करेंगे. ठीक है, अब
सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम किससे, NSAID से। मैंने पहले बोल दिया NSAID इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन द एक्यूट गाउट। NSAID दिया, स्पेशली उन पेशेंट्स में नहीं देंगे जहां पर हमको इस्केमिक हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर पैप्टिक अल्सर डिजीज देखने को मिल रहा है, ठीक है, वहां पर NSAID यूज नहीं करेंगे। हाँ, कौन सा NSAID यूज करेंगे, इंडोमिथासिन 50 मिलीग्राम थ्राइस अ डे, नेप्रोक्सेन 825 मिलीग्राम वंस अ डे और 275 मिलीग्राम 4 टाइम्स अ डे, ठीक है। अब इसके अलावा हम इसमें एक एडिटिव ड्रग लगा देते हैं विच इज नोन एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का क्या फायदा है, हम इसको आर्टिकुलर जॉइंट्स में इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, ये जो है ये जॉइंट्स में दिया जाता है, ठीक है। व्हाट इट कैन डू, इट कैन रिड्यूस द इन्फ्लामेशन इन द आर्टिकुलर जॉइंट्स, ठीक है ना। 20 to 30 मिलीग्राम पर डे दिया जाता है, स्पेशली इन सिस्टमिक रूट से, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द कॉल्चिसिन, ठीक है। थर्ड जो लाइन है वो क्या है, एक्यूट गाउट में कॉल्चिसिन। इन दिस पर्टिकुलर condition we have to notice that the patient was not suffering from renal insufficiency. If it is suffering from that, in that particular case what we can do, we can taper the dose of colchicine, ठीक है। especially most beneficial in the patient who are मतलब suffering within 12 to 36 hour of attack, ठीक है। 1 मिलीग्राम इनिशियली यूज किया जाता है और फिर बाद में 0.5 मिलीग्राम दिन में 4 बार, तब तक जब तक कि सिम्टम कम ना हो जाए या फिर जो इंडिकेशन है वो कम ना हो जाए, ठीक है। इसको जनरली हम ओरल रूट से भी दे सकते हैं, ठीक है। रीनल डोजिंग जो है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो किडनी फंक्शन है वो टेस्ट कैसा है, ठीक है। इंटरक्रिटिकल गाउट में जनरली हमको पेशेंट को एजुकेट करना होता है क्योंकि यहाँ पर पेशेंट कन्वर्ट हो रहा होता है एक्यूट से क्रोनिक गाउट में, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू फोकस ऑन द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, यानी इफ यू व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेल द पेशेंट टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव प्रोटीन इन हिज डाइट और इन हर डाइट, ठीक है। और फिर उसके अलावा फार्माकोथेरेपी हम लगा देते हैं। कौन से ड्रग लगाएंगे, स्पेशली एलोप्यूरिनॉल लगाएंगे, स्पेशली रिकरेंट अटैक हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, खाना का पैटर्न चेंज, डाइट चेंज, प्लान को चेंज करने के बावजूद भी, ठीक है। नेफ्रोलिथियासिस देखने को मिल रहा है, यानी कि किडनी में स्टोन हो गया। सीरम क्रेटिनिन का लेवल हमेशा 2 से ज्यादा है, यूरिक एसिड लेवल 11 से ज्यादा है, 24 आवर का यूरिन आउटपुट जो है वो 800 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा है, या फिर टॉफी जो है वो अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे एलोप्यूरिनॉल को। अगर एलोप्यूरिनॉल की टॉक्सिसिटी है, ठीक है, इफ सम पेशेंट हैव अ रीनल इनसफिशिएंसी और सम इश्यू विद द एलोप्यूरिनॉल ट्रीटमेंट, तो हम यहाँ पर कॉल्चिसिन को अल्टरनेटिवली यूज करेंगे, ठीक है। यानी ध्यान रखना, पहला चॉइस ऑफ ड्रग इंटरक्रिटिकल गाउट में क्या है, एलोप्यूरिनॉल, बट इफ इज नॉट वर्किंग तो हम किस में चेंज कर लेंगे इसको, हम आ जाएंगे कॉल्चिसिन के ऊपर। प्रोबेंसिड को हम तब यूज करेंगे जब हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट का जो रिकरेंट अटैक है वो देखने को मिल रहा है, या फिर जो यूरिन आउटपुट है विच इज लेस देन द 800 मिलीग्राम पर डीएल। Which drug to use? Now, this is a very big question. Generally, clinicians can distinguish this thing, but here we can try to distinguish how we can choose the drug, better drug for specific condition. ठीक है, तो generally they are depending on the patient. Either they are under excreter or the over producer. यहाँ पर दो बात आ गई। ओवर प्रोड्यूसर का मतलब वो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन उसकी बॉडी में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, दिस इज नोन अबाउट ओवर प्रोड्यूसर। वेयर एज अंडर एक्सक्रीटर का मतलब क्या, उसके बॉडी में से यूरिक एसिड का लेवल कम निकल रहा है, यूरिन से कम निकल रहा है, यानी मेटाबॉलिज्म ज्यादा हुआ, ज्यादा यूरिक एसिड बन रहा है और निकल कम रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का 24 आवर यूरिन सैंपल लेते हैं और उसमें चेक करते हैं। अगर 700 मिलीग्राम पर डीएल से कम यूरिक एसिड दिख रहा है तो उसको हम कहते हैं अंडर एक्सक्रीटर, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और अगर 700 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा निकल रहा है, इसका मतलब है द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। तो अगर कम निकल रहा है तो यूरोकोसिरिक ड्रग के साथ जाएंगे, और अगर ज्यादा बन रहा है तो हमें एलोप्यूरिनॉल को यूज करना है जेंथिन ऑक्सीडेज पाथवे को इनहिबिट करने के लिए। 90% ऑफ पेशेंट्स आर अंडर एक्सक्रीटर, ठीक है, यानी आप इसको ऐसे समझ लो कि हम जनरली यूरोकोसिरिक एजेंट्स को ज्यादा यूज करते हैं कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। नाउ प्रिवेंशन की अगर बात करें तो वी हैव टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड लेवल विद इन द नॉर्मल रेंज बाय चेंजिंग अवर लाइफस्टाइल और डाइट प्लान, सब कुछ, ठीक है। पानी ज्यादा पियो, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बैलेंस योर बॉडी वेट,
This is the very important thing because what are the affected part? Joints are the affected part. और once you have a obesity, ठीक है, तो वो जो लोड है वो पूरा आपके joints पे पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके joints collapse होने के chances बढ़ जाते हैं. Avoid purine rich food, reduce the alcohol consumption, do not use diuretic drugs, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पानी निकलने लगेगा तो यूरिक एसिड क्या होगा, कंसंट्रेट होगा आपकी बॉडी में. These are the food which can prevent the gout. दे आर यूज प्रोफाइलेक्सली. आप ज्यादा लेमन कंज्यूम करो, वाटर क्रैश को यूज करो, पेपर्स, चेरीज, टर्मरिक, जिंजर, पाइन एप्पल, ठीक है. डू नॉट गो विद द मीट और सम थिंग विच इज रिच इन द प्रोटीन, ठीक है ना. न्यूअर ड्रग्स की बात करें तो यूरिकेज एंजाइम, ठीक है, दीज आर द नोवल एंड एजेंट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. यूरिकेज एंजाइम को यूज करते हैं हम, तो क्या करता है यूरिकेज, इट कैटाबोलाइजेज द यूरेट इनटू एलेंटोइन. मैंने पिछले, आप अगर याद हो 2-3 स्लाइड पहले में हमने बात की थी कि यूरिक एसिड का सॉल्युबिलिटी कम है, ठीक है, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एलेंटोइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ज्यादा कन्वर्जन की वजह से क्या होगा, एलेंटोइन बाहर निकलने लगेगा. और फॉर दैट व्हाट वी कैन यूज, यूरिकेज एंजाइम, ठीक है. करंटली अप्रूव्ड फॉर द हाइपरयूरेसेमिया बाय द FDA, ठीक है. Some concern is there. There is some cases which are reported with the immunogenicity and some long side effects. ठीक है. The name of drug is pegloticase. ठीक है. Pegloticase is a drug which is you can say uricase analog. ठीक है. These are the references. You can refer for further enhancement of your knowledge. ठीक है. Thank you for the patience listening. Thank you.